الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نبا کی چھٹی آیت سے سٹارٹ کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے عربی زبان میں جب حمزہ سے جب کوئی بھی بات سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. جیسے کہ دیکھیے گا جیسے کہ ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. جب ہم نے اس کو سوالیہ جملے میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں، ہم حمزہ لگا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ کتاب ہے. یہ جملہ دیتے ہیں کیا، ٹھیک ہے. یہ سوالیہ. یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے استفہام انکاری کے طور پر. کیا ہم نے ایسا نہیں کیا. دیکھیں پچھلی آیتوں میں جو بات ہو رہی تھی کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قیامت کے آنے کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اسی کے جواب کا ایک سلسلہ ہے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری میں کیا ہم نے الم نجعل الارض مہادا. اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں بتا رہے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو بنایا، ہم نے پہاڑ کو بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا. یہ جو چیزیں ہیں جب ہم ان مشکل چیزوں کو بنا سکتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سورہ مومن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ساتوں آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے وہ بے شک جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے. لخلق السماوات والارض اکبر، وہ کافی بڑی ہے. انسان کو پیدا کرنے اتنا مشکل نہیں ہے جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ ہم کیسے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بات میں کہہ رہے ہیں کہ تم غور تو کرو. تم کہہ رہے ہو کہ کیسے قیامت آئے گی. کیا اللہ تعالیٰ روز جو ہے وہ تمہیں موت نہیں دے دیتا، تم سوتے ہو. تمہاری اس آیت میں ہم پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم گرامیٹیکلی ہم لفظ بلفظ ہم سمجھیں گے. اب یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. پھر علم، کیا نہیں ایسا کیا. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ واقعی ایسا کیا. اب یہاں پہ جو ہے کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا. کیا ہم نے نہیں بنایا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا. کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا. اب اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں علم اور لم کو سمجھ لیجئے. دیکھیں جو لم ہوتا ہے یہ کس کو کہتے ہیں، یہ حروف جازمہ میں سے آتا ہے. جب کبھی لم آتا ہے اور اس کے ساتھ جو فعل آتا ہے جیسے کہ لم یا لد، تو کیا ہوتا ہے کہ جو آخری جو لیٹر ہوتا ہے، جو اس پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ جزم ہوتی ہے، وہ سکون ہوتی ہے اسلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ رہا ہے علم نجعل. علم نجعل یہاں پہ جو علم نجعل ہے، ٹھیک ہے، جو لم کی وجہ سے یہاں پہ جزم آئی. لم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا. لم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسیکلی ماضی میں. لم کا جو بنیادی جو استعمال ہے وہ کیا ہم نے نہیں بنایا، یعنی ماضی میں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ ماضی کے لیے یوز ہوتا ہے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ، اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ یٹ. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اچھا لم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا. اچھا اب جب اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، یہ فعل ہے اور یہ مفعول ہے.
ये एक मफूल है और मिहादा जो है वो ये दूसरा मफूल है, ठीक है। अलम जब हम इसको मिलाएंगे तो इसको है जज़म है, लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे तो इस जज़म को खत्म करके हम इसको कहते हैं आरजी कसरा। अलम नजा लिल अर्दा, यहां तक समझ ली। अच्छा अब देखें, जो नज अल हमने बनाया, कुरान पाक में बनाने के बारे में कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। देखें जैसे कि जाला है, जाला का ताल्लुक होता है तख्लीक से और जाला में तरतीब शामिल होती है, ठीक है। फिर एक होता है खलका, खलका होता है जो किसी मादे से पैदा की जाए, उसके लिए फिर एक होता है फतरा। फतरा को कहते हैं किसी चीज को खराश तराश कर उसको खूबसूरत बनाना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द। फिर इस्तेमाल होता है बराआ, बराआ कहते हैं जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये चीज बेहतर है तुम्हारे बगैर मादे के पैदा होना। बरा का मतलब होता है बगैर मादे के पैदा होना, यानी कि उसने तुम्हें बगैर मादे के, तुम्हें जब पैदा किया तो बगैर किसी मादे के पैदा किया। फिर एक होता है बदाआ, जैसे कि सूरह अंबिया में 104 आयत में यौम नत्वी समा कतई सिजिल्ली लिल कुतुब कमा बदाना अव्वला खल्किन नुईदु, कमा बदाना अव्वला खल्किन नुईदु। बदा यहाँ पे बदा का मतलब होता है बगैर किसी पैटर्न को फॉलो करना, बगैर किसी की तकलीफ किए एक चीज बनाना, जैसे कि बदी उस समावाती वाला, यानी कि कोई पैटर्न नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था हमारे सामने, हमने नई से नई चीज बनाई अनोखी चीज बनाना, ये बदा आबदियों के माना है। फिर एक माना होता है अंशा, अंशा कहते हैं एक चीज को बनाना और फिर उसकी नशो नुमा करना। वलकद ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, वलकद ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जहन्नुम के लिए बनाए और खिलाए उसमें बहुत ज्यादा जिन और इंसान। 179 आयत है। जराना का मतलब होता है बेसिकली, जरा कहते हैं खेत में बीज को फैला देना, तो ये माना है। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज है पैदा करने के जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। अब चूंकि ये मैं चाहता था कि आपको एक आइडिया हो जाए। अच्छा अब ये है जाला, ठीक है, ये फेल है, ये माजी का सीगा है, जाला ये जालू। अब इसमें फेल मुजारे में जो पैदा होते हैं वो अजअलू, यजअलू, तजअलू और नजअलू। फेल मुजारे जो है उसकी 4 अलामतें होती हैं, या तो हमजा से शुरू अजअलू यानी कि मैं पैदा करता हूँ, इसकी वजह से होगा कि मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। यजअलू का मतलब है वो बनाता है, वो बनाता है। तजअलू का मतलब होता है तुम बनाते हो, या ये मोनस के लिए भी आता है, ठीक है। और नजअलू का सीगा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, नजअलू यानी कि हम बनाते हैं। अलम नजअलिल अर्द, क्या हमने नहीं बनाया, अलम नजअलिल अर्दा, ये था, यहाँ पे था जज़म था, लेकिन इसको कहते हैं आरजी कसरा, तो ये मिलाने के लिए होता है, इसको कहते हैं कसरा। अलम नजअलिल अर्दा, देखें जैसे कि जैदुन कहते हैं हालत रफ़ा, जैदन कहते हैं हालत नसब, और जैदिन कहते हैं हालत जर। तो इसको कहते हैं मजरूर, मंसूब, नाउन को कहेंगे मंसूब है और ये कहेंगे मरफू है। तो अलम नजअलिल अर्दा, तो इसको कहते, और ये भी देख लें, इसको कहते हैं दम्मा, इसको जबर, जबर हमारे यहाँ कहा जाता है, इसको कहते हैं फतहा, और जेर जिसको कहते इसको कहते हैं
कसरा, ये नोट कर लें आपके लिए। अलम नजअलिल अर्दा मिहादा। अच्छा ये बात याद रखिएगा, जो जाल का फेल है, जो जाल का फेल है, जाला का फेल है, ये दो मफऊल लेके आता है। और जो मफूल होता है, जैसे कि अरबी जुबान में, जैसे कि ये आम जुमला में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अल्लामा, अरबी जुबान में ये होता है जो फेल होता है, जो कि फेल होता है, जिसको वर्ब कहते हैं, वो पहले आता है। ठीक है, अल्लामा सिखाया, तालीम देना, तालीम देना। जैदुन, जैद ने, जो दो ये जो पेश है, जो तनवीन आपको नजर आ रही है, जो ये हालत रफा में है, जैदुन, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। ये काम होता है, ये काम करने वाला होता है। तो अल्लामा जैदुन, जैद ने तालीम दी, किसको दी? हामिदन, हामिद को, हामिद को। ये आपने याद रखना है। अल्लामा जैदुन हामिदन, जैद ने हामिद को तालीम दी। जो पेश होती है ना, मोस्टली एक्सेप्शनल भी पढ़ेंगे हम आगे जाकर, जैसे कि बाद सूरत हाल में ये नाइबुल फाइल के तौर पर भी आता है, लेकिन वो भी नहीं पढ़ रहे। अल्लामा जैदुन, जैदुन, जैद ने तालीम दी, हामिदन, हामिद को तालीम दी। ठीक है, तो अब इसको ये देखिएगा कि जाला, ठीक है, जाला बनाया। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंस का अरबिक में। जाला बनाया, किसने? अल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। ठीक है, अल अर्दा, जमीन को, जमीन को बनाया। ठीक हो गया। अल अर्दा मिहादा। देखिए ये जो जाला है ना, ये अपने साथ दो मफूल लाता है, दो मफूल डिमांड करता है। तो यहाँ पे दो मफूल हैं, एक एक यहाँ पे नजाल का माना है नहनु, यहाँ पे जो है अलम नजअल अर्दा मिहादा, क्या हमने जमीन को नहीं बनाया। नजअल अर्दा, मिहादा, इसमें जो जाल है वो है फेल। ठीक है, इसमें जो ये नून है, ये है नहनु, ये है फाइल, ये है फाइल, ये हमने बनाया। जमीन को, जमीन को क्या? बिछोना। देखें, जमीन के लिए, जमीन को बिछाने के लिए ना कुरान पाक में कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि दहा का इस्तेमाल हुआ सूरह नाजियात में, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, सूरह नाजियात की आयत नंबर 30 में दहाहा। और एक और माना इस्तेमाल, एक और इस्तेमाल हुआ है, वल अर्दी वमा तहाहा, सूरह शम्स में आयत नंबर 6 में, वल अर्दी, जमीन की कसम, वमा तहाहा, और कैसे उसको फैलाया। देखिए एक होता है दहा और एक होता है तहा। इन दोनों के माना होते हैं दूर तक फैलाना, इन दोनों के माना होते हैं दूर दूर तक फैलाना। लेकिन ये कुरान पाक में एक ही बार इस्तेमाल हुए हैं। दहा में गुलाई का माना आता है। उदहियातुन एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उदहियातुन, उदहियातुन कहते हैं कि रेत में जब शुतुरमुर्ग अपने जो अंडे देता है उसको कहते हैं। और कैसे हमने बनाया, जो ये जो दहा है, दाल का मान, दाल का जो लफ्ज़ है वो सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 30 में इस्तेमाल हुआ है, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। और जो सूरह शम्स में इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है वल अर्दी, जमीन की कसम, वमा तहाहा, कैसे बनाया। तो दहा में जो है वो गुलाई का माना पाया जाता है। ठीक है, फिर एक माना इस्तेमाल हुआ है कि वल अर्दी वमा, वल अर्दी, जमीन की कसम, वमा तहाहा। फिर जमीन के लिए एक जो फैलाने का सतहा, एक होता है सतहा, सतहा कहते हैं कि छत को हमवार करना। और एक होता है फरशा, फरशा कहते हैं जमीन को पूरे का पूरा फैला देना। दहा और तहा का माना होता है दूर तक फैला देना, फरशा का मतलब होता है जमीन को पूरा फैला देना,
पूरा फैला देना जमीन पर। और सतह का मतलब होता है छत को हमवार करना, सतहल बैत, सतहल बैत। तो छत को हमवार करना। तो एक माना यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ वो है मिहादा। ये मिहादा का मतलब होता है बिछोना। ये किस किस माना में इस्तेमाल होता है? मिहादा असल में कहते हैं माँ की गोद को भी कहते हैं। इसलिए इसमें इस तरह बिछाना कि जिसमें वसाइले रिस्क भी मुयसर हो और सामान्य तरबियत का भी इंतजाम मौजूद हो, इसको कहते हैं मिहादा। कितनी जामे आयत है, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा। क्या हमने जमीन को नहीं बनाया? मुझे सूरह, अभी हम सूरह मुर्सिलात है, सूरह मुर्सिलात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम नजअलिल अर्दा किफाता अहयाअम व अमवाता। क्या हमने जमीन को काफी नहीं बना दिया? अलम नजअलिल अर्दा किफाता अहयाअम व अमवाता, जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी। ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा? अलम नजअलिल अर्दा मिहादा। क्या हमने जमीन को बिछोना, ऐसा बिछोना बनाया जिसमें तमाम जरूरियात, देखिए माँ की गोद, माँ की गोद को भी कहते हैं ना मिहादा। तो माँ की गोद, क्या वो तरबियत की दरसगाह नहीं होती? क्या माँ की गोद जो होती है वो इंसान को बुनियादी रिस्क, जब बच्चा पैदा होता है क्या उसको बुनियादी रिस्क जो मिल रहा होता है वहां से? क्या जमीन, क्या जमीन तुम्हारी माँ की तरह नहीं तुम्हें ट्रीट करती? क्या तुम्हारी जमीन अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बनाई कि तुम्हें रिस्क भी दे रही है और तुम्हें जो है वो तुम्हारी जरूरियात के जो सामान है, जो मवेशी हैं, उनसे तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही है। अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला उतादा। वह जबल है, जबल कहते हैं पहाड़ को, जबल कहते हैं पहाड़ को। इसकी जो जमा यहाँ पे जो इस्तेमाल हुई है वो आई है फिआल के वजन पे। फिआल के वजन पे देखें, ये होती है जिबाल के वजन पे। देखें जीम बा लाम मादा फा आइन लाम, इसमें अगर पुट करेंगे तो आएगा जी बा लुन। वल जिबालू, वल जिबाला, असल में ये लाम के ऊपर जबर क्यों है? अलम नजरिल अर्दा, ये जो जालना है इसका अतफ जा रहा है इस पे। क्या हमने नहीं बनाया वल अलम नजरिल अर्दा मिहादा, फिर इसका अतफ जा रहा है वल जिबाला अवतादा। क्योंकि अजअल जो है ना ये दो मफूल डिमांड करता है। पहले ये इस आयत का एक मफूल और ये दूसरा मफूल, और ये पहला, क्या हमने नहीं बनाया अल जिबाला पहाड़ों को अवतादा, अवतादा में है एस्पेक्ट्स। क्या हमने पहाड़ों को मेह नहीं बना दिया? अवताद जो है ये वतद की जमा है, वतद, वतद कहते हैं ना कील को, मेह को, ये उसकी जमा अवताद। अवताद ये जो जमा आई है कील मेह, जैसे कि ये है अफ़आलुन के वजन। अफ़आलुन ये हालत नसब में है, ये भी मंसूब है और ये भी मंसूब है जो कि ज़बर है, जो कि हालत नसब में है। अफ़आलुन, अफ़आलुन अवतादुन, अवतादुन, अवतादुन ये उसकी हालत रफ़ा हो गई, अवतादन उसकी हालत नसब और अवतादिन उसकी हालत जर हो गई। तो वल जिबाला अवतादा, तो क्या अलम नजल, तो इसका जो अतफ जा रहा है, अलम नजल का अतफ जा रहा है वो इस पे भी जा रहा है वल जिबाला उतादा। अलम नजल अर्दा मिहादा अलम नजल वल जिबाला उतादा। ये मैं लिख देता हूँ इधर के वल जिबाला जो है ये फिआलुन के वजन पे है और ये अफ़आलुन के वजन पे है। ये ओजान है, ये वजन है जमा के, पैटर्न, ये सेट पैटर्न है। ठीक है। क्या हमने, जैसे कि जमीन कांप रही थी, शेक कर रही थी, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने जो है वो पहाड़ इसमें बनाए। और ये खलकना, खलकनाकुम, हमने बनाया। ये जो खलकना है ना, खलकना, इसमें ये है खलका फेल,
खला का फेल है, हमने बनाया नहनु, और ये नहनु फाइल है, यानी कि हमने बनाया। तुम्हें बनाया कुम, ये मफूल है। खलकना कुम, ये सारा मफूल है। वखलकनाकुम, और हमने तुम्हें, ये खलका भी जो है ये भी दो मफूल डिमांड करता है, खलका भी। वखलकनाकुम, हमने तुम्हें बनाया, क्या बनाया? अजवाजा, इन पेयर्स। देखिए अजवाजा जो है जोज की जमा है, जैसे कि ये जोज की जमा है, ये जोज की जमा, इसका मतलब नर और मादा। मर्द और औरत दोनों, हमने तुम्हें इन पेयर्स में बनाया। इंग्लिश का वर्ड जो पेयर्स है ये ज्यादा सूटेबल है इसके लिए, कि हमने तुम्हें पेयर्स में बनाया। अजवाजा, ये जोज है चूंकि, तो ये किस वजन पे है? अफ़आलुन के वजन पे। देखिएगा ये अफ़आलुन के वजन पे है, ये हरूफ असलिया इसके जाल वाव जीम है, अफ़आलुन। वखलकनाकुम अजवाजा, हमने तुम्हें अजवाज में बनाया। रंगों में कितना फर्क है, तुम्हारी स्किन में कितना फर्क है, तुम्हारी जुबानों में कितना फर्क है, तुम्हारी शक्लों में कितना फर्क है। और जब ये तुम देखते हो कि अल्लाह ताला ने एक ही मिट्टी से इंसान बनाए हैं, देखो हर एक का चेहरा मुख्तलिफ, हर एक की आवाज़ मुख्तलिफ, हर एक के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ। वो अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन को कायम नहीं कर सकता? क्या वो अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता। अब आगे तीनों आयतों का आगाज वजअलना से स्टार्ट हो रहा है। वजअलना, वजअलना क्या हमने बनाया, वजअलना क्या हमने बनाया। हमने बनाया, जाला, ये जब हम फेल पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सीखे हैं, इसको हम मजीद फिर हम स्टडी करेंगे। जाला जाला जालू, जालत जालता, जालना जालता, जालतुमा जालतुम, जालती जालतुमा जालतुन्ना, जालतु जालना। तो ये हम उसमें स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी। अभी सिर्फ आप समझें वजालना, ये ना जो है ये नहनु फाइल है, और हमने बनाया, बनाया हमने, हमने वजालना नौमकुम, नोम कहते हैं नींद को, नोमुन कहते हैं नींद को, तो हमने बनाया तुम्हारी नींद को। एक ये जाला, जैसे मैंने आपसे कहा, ये दो मफूल डिमांड करता है। हमने बनाया, बनाने वाले हम थे। किसको बनाया? नींद को बनाया। पहला नोमा कुम, तुम्हारी नींद को बनाया। सुबाता, सुबाता का मतलब होता है काट देना। नोमा कुम देखें, नोमा कुम, नोमा कुम तुम्हारी नींद को। ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और कभी इजाफी नौमाकुम सुबाता, सुबाता कहते हैं जो चीज काट दे। सुप्त, सुप्तन काटना, यानी तुम दिन भर काम काज करते हो, और जब तुम रात होती है और तुम बिल्कुल एक स्टेट में चले जाते हो, तो रात अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी है। जैसे कि आगे आएगा वजह लैला लिबासा, जब रात को एक लिबास बना दिया, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो क़यामत बर्पा कर दे? तुम्हारी नींद जो तुम्हें रोज आती है, रोज तुम सोते हो, रोज तुम कट जाते हो, तुम्हें होश नहीं होती ना अपनी ना इर्द गिर्द की चीजों की, तो क्या वो अल्लाह जो रोज तुम्हें सुलाता है, रोज तुम्हारा ताल्लुक कट जाता है हर चीज से, क्या वो अल्लाह ताला
دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وجعلنا النہار معاشا، یہ اصل میں نہار اور لیل یہ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. دن کو جب بالکل گہما گہمی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے معاش کے لیے تگودو کر رہا ہوتا ہے، اور رات کو جو ہے وہ بالکل بحر ساجن کی طرح سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے. تو یہ وجعلنا نومکم سباتا، تو ہم نے تمہاری نیند کو جو ہے وہ تمہاری چین کی نیند، آرام کی چیز بنایا. سبت کا ویسے مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، ہر چیز سے کٹ جانا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.